Hello and a very warm welcome. Thank you, Madhulika, for joining in. Today we are on insight number 58, and insight number 58 says, if you want your love to grow and flourish, nourish it with happiness and share it with others. Hmm. Past few sessions में part 5 में we have been gently uncovering what relationships truly need. हमने डिस्कवर किया कि love is not merely attraction. We learned that जो कनेक्शन होता है, कनेक्शन विद अदर्स बिगिन विद जो कनेक्शन हमारा हमारे साथ होता है उससे. Then we also reflected on coming home to ourselves, grounding in the present moment and learning to be truly available जिसके साथ भी हम बैठे हैं उस टाइम पे. एंड आज ऑथर नेक्स्ट ब्यूटीफुल रियलाइजेशन दे रहा है कि लव डज नॉट सर्वाइव ऑन ऑटो पायलट. लव को नरिशमेंट चाहिए. एंड थिंक ऑफ इट लाइक अ प्लांट जो हमारी विंडो में है. यू कैनॉट वाटर इट वंस एंड एक्सपेक्ट इट टू ब्लूम फॉर एवर. यू कैनॉट इग्नोर इट फॉर मंथ्स एंड देन बी सरप्राइज कि इसकी लीव्स ड्राई क्यों हो गई है ना. एंड when the leaves go dry, it does not mean the plant is bad. It simply means कि उसको nourishment नहीं मिली है. Relationships are very similar. बड़े सारे वन ऑन वंस में समझ में आता है कि many couples हैं जो they say कि we still love each other, so why do we feel so distant? And I have seen that in my marriage as well at a point of time. बहुत सारे पेरेंट्स भी ऐसे बोलते कि why do my children hardly talk to me anymore? ठीक है. And sometimes the answer is not the betrayal, it is neglect, it is busyness, exhaustion, stress, and the assumption that love will somehow take care of itself. प्यार है, सब चल जाएगा, हो जाएगा. And we take it for granted. But the thing that I have observed is कि love also needs that tending. एंड आज ऑथर ने यही ब्यूटीफुल इमेज हमारे सामने रखी है. लेट मी वेरी क्विकली स्टार्ट शेयरिंग द स्क्रीन. लेट्स रीड दिस टुगेदर एंड सी व्हाट डू वी हैव. Insight number 58. If you want love to grow and flourish, nourish it with happiness and share it with others. Consider adding a teaspoon of salt to your glass of water. It would be nearly impossible to drink. And consider throwing that spoonful of salt into a river. It won't make much a difference. Similarly, our hearts are small and closed. We are easily upset by mistakes and flaws of others. However, if we open our hearts, we will discover empathy and compassion for our fellow humans. Understanding someone's suffering is the best gift you can give to another person. Understanding is love's other name. If you don't understand, you can't love. It is as simple as that. Love requires nourishment. Happiness is the source of that nourishment. Only when we are content can we truly open our hearts and love others. Zen Buddhism teaches us about happiness and how to achieve it. We sometimes believe that happiness will come to us through materialistic desires. True happiness, on the other hand, is the result of mindfulness. Walking is a quick exercise that can help you experience happiness through mindfulness. Instead of focusing on the destination and rushing, consider the movement of the body and the beauty of the surroundings.
When you practice mindfulness, you will notice beauty in the simplest of things, such as a flower in bloom. Pay attention to your surroundings and your body as well as your movement. Take everything in. That is how you will find true happiness. When you find happiness in the present moment, you can share it with others and help them find happiness as well. Hmm, मधुलिका, कुछ मिला इसमें? कोशिश कर रही हूँ रिलेट करने की। Randomly, anything? Randomly, it is more related to like relationship with mostly with couple relationship, we can say, or maybe with our children. But yeah, this can be with, on a broader aspect, this can be related with any relationship. But yes, if understanding is there, that is the best gift that we can give. That is the best form of love. That if you can understand someone's suffering. So can be concluded like this also. On the other, if we read it the other way, if someone is not understanding your suffering, that means there is no love, right? That means there is no love. What do I say? Not understanding. अगर कोई मुझे कुछ समझ मेरे को समझ ही नहीं रहा, there is some There disconnect. is There is a disconnect first with the person himself. जो अपने आप को प्यार hmm. नहीं करता वो किसी और को भी प्यार नहीं कर सकता. तो फिर सेल्फिश लोग कैसे होते हैं करिश्मा? दे लव देमसेल्व्स अ लॉट, दे आर ऑलवेज राइट एंड दे लव देमसेल्व्स एंड मेरा मेरा मेरा, मतलब आई मी माई सेल्फ, मेरा मेरा खाना। सी, डेली रूटीन में देखा जाए तो यही चीजें होती हैं, मेरा खाना मेरी चीजें, है ना? यही सब चीजें होनी चाहिए, बाकी आपकी सफरिंग से या आपके स्टेट ऑफ माइंड से कोई लेना देना नहीं है। There are तो people वो like तो that. वो कहते हैं ना मेल शॉविनिस्ट सोसाइटी है कहीं कहीं पे. कहीं कहीं पे very narcissist people also exist. All kind of people exist here, don't they? But है ना? everybody who is in our life, if they are in our lives, means something. या दैट Means. मीन्स समथिंग। क्योंकि I have seen people change 180 degrees. I have seen people stay the same way they are. यू कैन It's चेंज ओनली इफ यू आर विलिंग टू चेंज। change का आपको yes, of If they are course. willing to change, then only they'll change. हाँ. Otherwise, change Everybody cannot works on happen. yourself. So Madhulika, I will say हम्म this कि अगर आपने अपनी एनर्जी पे काम करा, ठीक है, हम्म। तो आपके आसपास के जो लोग हैं they will have to match your energy. And if they do not and they stay where they are and आप भी वहीं पे हो तो there is some mismatch जिसकी वजह से आप कभी एक साथ हो ही नहीं पाओगे. You will have हाँ तो backs साथ होने towards की each क्या other. जरूरत है? अगर कोई अपने पे काम करने के लिए तैयार नहीं है, and I am ready to work on myself and I am ready to move on, and they are not capable, they are not able, they are not willing to match my energy, then I should not wait. I should also move on. No? People will leave you. They will not stay with you. Hmm. Maybe that might be a case for you as well. जहाँ एनर्जी मैच नहीं होती, यूनिवर्स मेक्स such arrangements कि you will not stay together. अलग अलग अपार्टमेंट्स में रहो, अलग अलग सिटीज में, कंट्रीज में रहो, या अलग अलग फ्लोर्स पे रहो,
It is all because of the mismatch. Yet I believe अगर हम अपनी एनर्जी पे काम करते रहें, people change as well. Anybody and everybody does what they know is best, the way they are Hmm. raised. They come from the same psychology that they have been raised. And to change it, they need to work on themselves. If they are not ready to work Exactly. on themselves, then it is impossible. Yeah, then That's it the is way it is. impossible. Hmm. It is us who can work on ourselves only. And that means we have the power to remove people from our lives by raising our energy. Right. That automatically happens, Karishma. You're right. क्योंकि आपकी जब एनर्जी मैच नहीं करती तो अपने आप ही चीजें साइड होने लग जाती हैं, फिर आप उसको बाउंड्री कह लो, मतलब जो मर्जी नाम दे No लो, mercy now. है ना? Chalo, coming back to this हम्म. insight. When I read it, this was in my mind. कि कितना beautiful example दिया है कि this insight says कि add a spoonful of salt in a glass of water, it becomes difficult to drink. But if we add the same spoonful of water in a flowing river, hardly कोई change होगा. लाइफ हमारे को हर किस्म के सॉल्ट्स देती रहती. कभी वो सॉल्ट के रूप में हमारे पास डिसअपॉइंटमेंट्स आती है, कभी हमारे पास मिसअंडरस्टैंडिंग्स आती हैं, कभी मिस्टेक्स आती है, कभी रिग्रेट्स आते हैं, कभी अनमेट एक्सपेक्टेशंस आती है, कभी हार्श वर्ड्स आते हैं. एंड सच्चाई ये है कि कोई रिलेशनशिप इस चीज से एस्केप नहीं कर सकता. अब क्वेश्चन ये है कि वेदर विद द क्वेश्चन इज नॉट कि वेदर द सॉल्ट एग्जिस्ट, द क्वेश्चन इज कि हमारा दिल कितना बड़ा है. व्हेन आवर हार्ट बिकम्स स्मॉल, हमारा हार्ट स्मॉल कैसे बनता है? हमारा हार्ट स्मॉल बनता है रिसेंटमेंट से, एंगर से, एग्जॉस्शन से, रिजिडिटी से, फ्रस्ट्रेशन से, है ना? इवन जो हमारी जो भी स्मॉल इनकन्वीनियंसेस होती हैं, दे बिकम अनबियरेबल. कैसे? हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, किसी ने आपको कॉल नहीं किया. समवन स्पीक्स इम्पेशेंटली क्योंकि दे आर फ्रस्ट्रेटेड. समवन डज नॉट मीट आवर एक्सपेक्टेशंस, तो हम गुस्सा हो जाते हैं. और धीरे धीरे वी सी कि हमारा जो एंटायर रिलेशनशिप है, इट फील्स थ्रेटेड. उसके अंदर प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाए. बट अगर हमारा हार्ट एक्सपैंड हो जाए थ्रू अंडरस्टैंडिंग, कोई गलती कर रहा है पर हम अंडरस्टैंडिंग हो जाए, हम कंपैशनेट हो जाए, है ना, और हम उनका पर्सपेक्टिव समझना शुरू हो जाए, वी बिकम मोर स्पेशियस. अब हर जगह पे शायद ये चीज अप्लाई ना हो, बट मोस्टली जगहों पे ये चीजें अप्लाई हो सकती हैं फॉर आवर किड्स. हम हमारे को हमारे नॉर्मली स्पीकिंग द मोस्ट वी गेट हर्ट फ्रॉम and the most misunderstandings that we drag on to is with our spouse. हम अपने माँ बाप के साथ, अपने बच्चों के साथ, सबके साथ अंडरस्टैंडिंग एंड कंपैशन के साथ काम कर लेते हैं. वी ट्राई कि हम अपने हस्बैंड के साथ कर लें, बट हम उनके साथ इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि पहले तो आप अपने साथ भी नहीं हो वो अंडरस्टैंडिंग एंड कंपैशन. We need to understand कि we can hold imperfections without immediately thinking. इसमें बड़ी सुंदर ये लाइन थी कि अंडरस्टैंडिंग समवन सफरिंग इज द बेस्ट गिफ्ट यू कैन गिव अनदर पर्सन. हम अपने सबको जिनको हम प्यार करते हैं, हम बहुत आराम से हर किसी की सफरिंग को समझ पाते हैं. अंडरस्टैंडिंग इज लव्स अदर नेम. इफ यू डोंट अंडरस्टैंड यू कांट लव. दैट सेंटेंस चेंज द वे, यू नो,
how you define love. क्योंकि most of us think कि love says कि I agree with you. I approve of everything you want to do. Um, तुम जो मर्जी कर लो, मुझे कुछ हर्ट नहीं होता है. And actual में love says कि I want to understand what happened inside you before I judged what happened outside. I want to understand what happened inside you before I judged before I judge what happened outside. It takes a very big heart to do. I know it because I know कि मेरे हस्बैंड बहुत सारी ऐसी बातें करते हैं जिसके अंदर इट्स लाइक मुझे तो समझना भी नहीं है कि ये बंदा ऐसा क्यों बोल रहा है. आई थिंक कॉन्स्टेंटली बार बार ये चीजें सुन सुन के आई हैव एक्सपैंडेड माई हार्ट अ लिटिल to think of it कि चलो जब गुस्से में बोले तो I remind myself there has to be something that has happened because of which he's doing that. It has nothing to do with me. It is his inside world that is wrong. क्योंकि sometimes angry spouse is not angry. They're exhausted. कभी कभी जो critical parents होते हैं हम लोग भी करते हैं right? It is not unloving. It is more कि हमको डर है कि कुछ गलत ना हो जाए. Sometimes we are not rejecting anyone. The one who is rejecting, they are actually struggling silently. बट इसका मतलब ये नहीं है कि अंडरस्टैंडिंग जो होती है इट डज नॉट एक्सक्यूज एनीवन फ्रॉम कि इट डज नॉट गिव एन एक्सक्यूज फॉर एनीवन टू आपको जो मर्जी आए और हर्ट कर जाए. हर्टफुल बिहेवियर इज नॉट अलाउड बिकॉज क्योंकि मैं अंडरस्टैंडिंग हूँ तो तुम मेरे साथ कुछ भी कर लो. राइट. हैविंग सेड दैट, जब हम अंडरस्टैंडिंग होते हैं आई बिलीव कि हम सॉफ्टन हो जाते हैं. मे बी एट टाइम्स हम जो एजम्पशंस करते हैं वो रिप्लेस हो जाती हो क्यूरियोसिटी से कि यार. सो व्हेन आई सेड कि वो वाली स्टोरी मैंने बताई थी कि नीचे जा रही थी, मम्मी ने बोला कि ये टाइम नहीं देगा, और मेरी एजम्पशन थी हाँ ये बंदा तो पक्का मुझसे प्यार करता ही नहीं है, अदरवाइज इसने क्यों किया होगा ऐसा मेरे साथ जिंदगी में. बट अंडरस्टैंडिंग कहती है, अगर मेरे हस्बैंड कहता है मुझको, आई सिट विद हिम, आई टॉक टू हिम, ही सेज कि शुक्र मना अभी तो जितना ऊपर नीचे भागना पड़ता है उसकी वजह से कुछ तो बचाव हो गया होगा तेरा. एंड आई एम लाइक इवन मोर क्यूरियस कि नहीं मुझे सच सच रीजन बताओ, व्हाई डोंट यू वांट टू मेक अ किचन ऑन द सेकंड फ्लोर. बिकॉज ऑफ दैट क्यूरियोसिटी एंड बिकॉज ऑफ दैट maybe actually waiting to hear the real reason, he at last told me कि I want to leave this house. I don't want to live in this house. And अगर मैं जितना comfortable बनाता जाऊंगा उतना we will get comfortable and we will not want to leave this place. And I'm like, okay, why don't you want to live in this house? And the conversation proceeds. बट जब तक हमको क्यूरियोसिटी नहीं होगी कि सामने वाले के अंदर चल क्या रहा है जिसकी वजह से ही इज डूइंग व्हाट ही इज डूइंग, दैट इज हर्टिंग मी. That is something that I need to work on. Also, in during the weekend, I attended a Ho'oponopono session, and I got to know from there every time anything that triggers me. मतलब कि that is a place where I need a lot of healing, and whenever it is happens, I need to start doing the Ho'oponopono chant. Till it is not कि मेरे को 5 बार करना है 10 बार करना है, it is still that feeling shifts. तो मुझको वो चीज भी बड़ी अच्छी लगी क्योंकि सिंस देन आई एम वेरी माइंडफुल कि मेरे को कुछ ट्रिगर करेगा तो आई नीड टू see what is triggering me and I need to practice Ho'oponopono for that because I need to heal there.
हो सकता है सामने वाले की के हिसाब से वो नॉर्मल है चीज, मुझको ट्रिगर कर रही है क्योंकि मेरे लिए वो नॉर्मल नहीं है। तो दिस इज ऑल्सो समथिंग दैट बाय चांस ही सामने आई है, बट यस यू कैन वर्क ऑन दैट एज वेल। इफ समथिंग ट्रिगर्स यू, यू नीड टू नो कि देयर इज समथिंग दैट नीड्स टू शिफ्ट इन योर एनर्जी। हर इंसान के हिसाब से दे आर डूइंग देयर बेस्ट। ऑल्सो जब हम क्यूरियोसिटी की बात करते हैं तो द एबिलिटी to see beyond the emotional experience and imagine another person's inner world is something that psychologists talk about it as perspective taking। उसके बारे में भी सोचना कि हम इसको कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि हम इससे पहले कि किसी यू नो इसके अंदर चले जाए, एक्सपीरियंस के अंदर, क्योंकि इमोशंस तो आने हैं और जाने हैं। बिफोर आई or beyond, either before or beyond that emotional experience, किसी और के इनर वर्ल्ड के अंदर क्या चल रहा हो, सोच के देख। ठीक है। रिसर्च ये ऑथर ने एक और बहुत अच्छी जो इम्पोर्टेंट चीज बोली है, दैट इज लव रिक्वायर्स नरिशमेंट। एंड उसके आगे उन्होंने कहा था हैप्पीनेस इज द सोर्स ऑफ नरिशमेंट। है ना, लव रिक्वायर्स नरिशमेंट, हैप्पीनेस इज द सोर्स ऑफ दैट नरिशमेंट। This does not mean we have to be cheerful all the time. It means learning how to cultivate those moments of joy, those moments of gratitude, and it talks about presence as well. You know, and I think जब हम gratitude लिखते हैं, main reason for writing gratitudes is to be happy. Yes. People जो इमोशनली डिप्लीटेड होते हैं उनके पास बहुत कम होता है टू ऑफर टू द वर्ल्ड। एंड yesterday only I was talking to someone, नाइट सेशन में जब सेशन स्टार्ट हुआ था उससे पहले, है ना, someone joined early and we were talking and I was sharing with her कि it is so much important for us to fill our own cups first। हम कब तक देंगे? जब तक हमारे कप में कुछ होगा। जब वो खत्म खाली हो जाएगा और फिर भी हम देते रहेंगे, ड्राई होगा, अल्टीमेट ड्राई होगा, टू ड्राई होगा, इमोशनल एग्जॉस्शन तो हैज विल हैपन एनी हाउ। तो इसीलिए कहते हैं ना कि हमारी जो भी हॉबीज थी, हमारे को कुछ भी काम अच्छा लगता है, कुछ खाना अच्छा लगता है, कुछ पीना अच्छा लगता है, डू दैट, फिल योर ओन कप सो दैट you can have a bigger heart to serve people outside without getting emotionally exhausted। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब भी आप ओवरवेलम हो जाओगे, जब भी आप इमोशनली एग्जॉस्टेड होगे, जब भी आप डिस्कनेक्टेड होगे, डिस्कनेक्टेड किससे? अपने आप से। ये हमने आई थिंक लास्ट सेशन में पढ़ा था। तब हर बार आपको छोटी छोटी चीजें इरिटेट करेंगी, एंड एज आई सेड जब वो इरिटेट करे तो यू नो दिस इज द प्लेस आई नीड टू वर्क ऑन। ठीक है, थिंक दैट्स इट मेरे हिसाब से। दैट वाज द अंडरस्टैंडिंग दैट आई गॉट फ्रॉम व्हाट वी हैव रेड। अच्छा, दिस आल्सो टॉक्ड अबाउट प्रैक्टिस ऑफ माइंडफुलनेस। है ना, happiness is not hiding in the future achievements। some people say कि चलो जी eyes close करो, imagine you're doing this and हाँ मजे आ गए। we have to find
happiness in our simple moments of life. हमारे को गर्मा गर्म चाय मिल गई, आज सुबह मौसम कितना अच्छा था, आई वॉज लाइक सो हैप्पी, आई वॉज सो हैप्पी. एंड मैं मतलब मैं वॉक करके आई, एंड देन माय हस्बैंड हैड कम डाउनस्टेयर्स एंड आई टोल्ड हिम कि चलो चलो बाहर 2 मिनट खड़े होते हैं बाहर. एंड आई फेल्ट लाइक डांसिंग. मैं इतनी खुश थी बिकॉज आई लव गुड वेदर. आई लव व्हेन इट इज अबाउट टू रेन एंड हाउ इट इज विंडी. एंड इनफैक्ट मेरे को रेन भी बहुत अच्छी लगती है, द स्मेल ऑफ रेन एंड ऑल ऑफ दैट. We need to find such moments for ourselves in everyday, this thing. देखो वो आपके लिए क्या चीजें हैं. एंड माइंडफुलनेस कहाँ पे आती है? सो देर आर सो मेनी टाइम्स कि हम भाग ही रहे हैं, भाग के बस चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं. We don't even look up in the sky. We don't look at the surroundings. We don't look at the trees. We don't look at the blooming flowers. We do nothing. कुछ पता ही नहीं होता. So that is how my husband is. उस वो सामने से निकल जाएंगे, he would not know कि क्या चल रहा है साइड पे. And I'm like, तूने मुझे बताया क्यों नहीं है ऐसा हो रहा है? I'm like, you have to see. You have to slow down. Right? हमने अपने आप को ट्रेन किया है किसमें? टू ओवरलुक द ऑर्डिनरी मिरेकल्स दैट आर हैपनिंग इन आवर लाइव्स. And we are constantly chasing extraordinary moments. ऐसा हो जाएगा ना, लाइफ चेंज वाला. और मुझको तो इतने सालों के बाद ये पक्का समझ में आ गया कि जो रिलेशनशिप है, दे आर नॉट बिल्ड ऑन द ग्रैंड सेलिब्रेशंस. आई हैव सीन पीपल बहुत ग्रैंड ग्रैंड एवरी मंथ दे आर सेलिब्रेटिंग थिंग्स एंड लैंडिंग इनटू डाइवोर्सेस. Every relationship is built in ordinary days. कुछ नहीं हो रहा, उसके अंदर भी कुछ अच्छा सोच. um, Me and my husband, really were never spending enough time together. And I decided कि अभी से आज से जब चाय पियेंगे ना, I will look at my phone, ना I will allow him to watch any of his tablets and phone and anything. एक दिन हुआ he was talking to someone, दूसरा दिन हुआ he was watching, and then third day I at last told him इस टाइम पे तो कुछ भी नहीं होने वाला है ना. आप अपना फोन देखने वाले हो ना मैं अपना फोन देखने वाली हूँ. दुनिया गई भाड़ में. वी आर सिटिंग टुगेदर वेदर वी टॉक और नॉट. वी आर डूइंग नथिंग. नाउ वी टॉक. इट टुक टाइम क्योंकि बहुत टाइम से ऐसे बात ही नहीं करी है, कोई हंसने वाली कोई ऐसी बात कि हाँ बहुत साल हो गए शादी को. जस्ट लाइक वी वर टॉकिंग इन दिस सेशन. You have to build those moments. You have to work on. इसके अलावा कुछ था? I think that's it. Yeah. When you find happiness in the present moment, you can share it with others and help them find happiness as well. There are so many people who keep on putting stories. I have a friend, her name is Anita, and she puts her story every day. Oh, evening sunset. And I'm like, ये क्या हर रोज sunset डाल देती है? And I actually texted her, why do you put this sunset? क्योंकि करिश्मा इतना अच्छा लगता है ना, इतना सुंदर लगता है. मैंने कहा yes, of course the pictures are also very pretty. एंड देन शी सेड मन कर जाता है कि सबको दिखा दूं कि मेरे को क्या अच्छा लग रहा है. I'm like, yeah, that is so cute. किसी के लिए उसके अंदर भी खुशी छुपी हुई है और किसी के लिए दे विल बी क्वेश्चनिंग कि क्या क्या पागल है, क्या करती है रोज. जॉय को अगर पोस्टपोन नहीं करना है तो वी विल हैव टू फाइंड दो स्मॉल क्यूट मोमेंट्स टू एंजॉय एंड बी हैप्पी. नोटिस इट, क्रिएट इट, शेयर इट विद योर लव्ड वंस. मेरी मम्मी की आदत है, कुछ अच्छा खाना खा रही होंगी तो शी विल क्लिक अ पिक्चर, शी विल सेंड इट टू हर सिस्टर्स, शी विल सेंड इट टू मी, एंड आई एम लाइक वाओ नाइस. एंड एंड माय डैड इज लाइक तू रोज ना. एक दिन उनको पेट दर्द हो गया एंड उनको लूज मोशन हो गया, एंड पापा इज लाइक
सबको भेज फोटो है, नजर लगी तेरे को, एंड आई एम लाइक लाफिंग देयर सिटिंग, पापा ऐसे थोड़ी ना होता है। Love grows in the places where happiness is intentionally cultivated. एक इंसान, रिलेशनशिप दो से चलती है करिश्मा, एक इंसान ना थक जाता है रिलेशन को जिंदा रख रख के सच में। फिर लगता है कि कोई बात नहीं, लेट इट बी, शायद इसकी जिंदगी ही इतनी थी इस रिलेशन की, इसको छोड़ देते हैं। क्योंकि अब क्या है ना, मेरा कप खाली हो चुका है ना। क्योंकि कप भी दोनों तरफ से भरता है, आप अपना खुद भर के और दूसरे पे खाली नहीं कर सकते हो। एक्चुअली ना, हमारी एक ही जब तक इंसान नहीं शादियां चला हुई सकता। थी, प्रॉब्लम ये है कि हमारी जब तक शादियां हुई थी, हमारी शादियों तक कंसेप्ट था ही नहीं कि टू फुलर पीपल नीड टू मैरी। कहीं ना कहीं किसी की लाइफ में कुछ नहीं, वैक्यूम था जिसको भरने के लिए नहीं, दूसरा पर्सन आया था। नहीं करिश्मा, ये कॉन्सेप्ट तो आदि से था, आदि से था और अंत तक रहेगा। समझा किसी ने और किसी ने नहीं समझा। हर जमाने में हर तरीके के लोग थे, लोग आज भी ऐसे हैं जो बहुत कंजर्वेटिव हैं, और लोग पहले भी ऐसे थे जो बहुत खुले खुले विचारों के थे। तो जिनको ऐसा नहीं है कि आज से पहले शादियां चली नहीं, या लोग प्यार नहीं करते थे, या रिलेशनशिप ऐसे होते थे, नहीं। हमारे से पहले भी आप देखोगे, आपके कई बहुत पुश्तों में मिल जाएंगे, है ना। हम्म। पर पता नहीं, रिलेशन चलाने के लिए बंदे तो दो चाहिए होते हैं। इट्स अ टू वे रोड, इट्स नॉट अ वन वे ट्रैफिक। It has to flow two ways, and I cannot drain myself putting into it. ऐसा मुझे लगता है सच में, because I am the one who is nurturing it, who nurtured it for the longest period of my life. So now I want to nurture myself. That हाँ, तो fine तभी तो now, वही तो बात है। हाँ, फर्स्ट लव योर सेल्फ, फर्स्ट नर्चर योर सेल्फ, देन only love yourself. Nobody is आगे gonna बढ़ो। come seriously. Nobody is, because when you do it, then somewhere in the back of your mind, somewhere you have expectations that one day, 1 week, if I am low, if I'm not well, if I'm low, if I am facing some problem, if I am not that capable to put in that effort, so the other person should do it. No, the other यस person, ऑफ कोर्स। क्योंकि उसने तो सीखा ही नहीं, तो वो सीखेगा भी नहीं। क्योंकि उसने नहीं सीखा, उसको जरूरत ही नहीं लगी। उसको तो मिल रहा था ना। पता है क्या, अब जैसे जनरली जो आजकल के बच्चे जैसे जब शादी करते हैं, और लव मैरिज में, और जो सिर्फ दो बच्चे अपने आप लव मैरिज करते हैं, और अरेंज मैरिज में सबसे बड़ा डिफरेंस यही होता है दैट द ग्रूम ऑल्सो नोज दैट ही हैज टू अर्न दैट रिलेशनशिप। उसको वो थाली में सज के नहीं मिलेगा जमाई बाबू, जो कि एक अरेंज मैरिज में अरेंज्ड। उसको ये इज्जत और ये उस सब कुछ उसको सज के मिलता है, सच और के वो में। उसमें नखरे दिखाता है क्योंकि उसको मिल रहा होता है। तो सेम विद द हम्म। रिलेशनशिप ऑल्सो, उसको पता है उसको तो मिल रहा है। ही हैज नेवर लर्नड इट दैट हाउ आई एट टाइम्स द अदर पर्सन may feel low, maybe not available, maybe not in a mood, but then I have to nurture the relationship. आज इस पौधे को मुझे इस चीज पानी को, देना है। यस आई एब्सोल्युटली एग्री विद व्हाट यू आर सेइंग, बिकॉज वही मैंने एक बार पहले भी ये शायद कंसेप्ट शेयर किया था कि इट कुड बी कि आप हमेशा 70% दे रहे हो एंड द अदर पर्सन इज गिविंग 30%, बट इन ऑल इट हैज टू बी 100%। जब आप 30 हो तो ही हैज टू बिकम दैट 70, अदरवाइज इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। या इट इज और हमें 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 तो ये उम्मीद थी कि जिस दिन हम 30 हो जाएंगे अगला 70 हो जाएगा। जिस दिन हम 30 हो गए, धीरे धीरे वो 0 हो गया। क्योंकि सीखा ही नहीं कभी, क्योंकि जरूरत ही नहीं पड़ी, शायद अपने परिवारों में नहीं देखा। ये भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि देख के इंसान सीखता है। उसको एक नजरिया देखना पड़ता है, तभी वो सीख पाता है। कभी देखा ही नहीं है, नजरिया भी होता है कि कैसे आपको किसी को वैल्यूएबल फील कराना है, या
अ, उसको कैसे आपको स्ट्रेस से बाहर निकालना है, या कैसे आपको उसके साथ कुछ अच्छा बोलना है जिसको सिर्फ सुनने से ही अच्छा लगे। हम्म। एक नर्स भी है ना, मेरे फादर की ना बहुत जॉली नेचर है, बहुत ही जॉली। वो बहुत हैप्पी गो लकी वाले लोगों में से हैं। अरे ये तो सब एंजल्स हैं, इन्होंने मुझे मेरा ध्यान रखा हुआ है, ये तो, ये मतलब ही नेवर कंप्लेन्स। आई कंप्लेन कि आपने ब्रेकफास्ट में एक ही बाउल आया था, आज सिर्फ पनीर आया था, पोहा या कुछ और नहीं आया। ही नेवर कंप्लेन, तो कोई बात नहीं, मैं लंच में खा लूंगा। तो कोई अनजान जो वहां, अब तो हमें 15 दिन हो गए हॉस्पिटल में, तो स्टाफ सारा ही जान गया है, फ्लोर वाला भी, डॉक्टर्स भी, सब पहचान ही जाते हैं। तो कोई अनजान भी बोल देता है कि नहीं नहीं अंकल ठीक हो जाएंगे, आप टेंशन मत लो, है ना। उसको कुछ नहीं पता इनको क्या बीमारी हुई है, क्या इलाज चल रहा है, कितनी क्रिटिकल है, पर फिर भी वो जब बोल देते हैं ना, करिश्मा मुझे नहीं पता क्यों, हाँ, मुझे सुन के अच्छा ही लगता है ना, कहना because बात that तो is ऐसी what करो। we want to hear. हाँ, बात तो ऐसी करो जो, तो इस रिलेशनशिप में किसी को वो बात भी नहीं करनी आती, क्योंकि सीखा ही नहीं कभी, क्योंकि उन्होंने देखा ही नहीं कभी। और ऐसा नहीं है कि उनके जमाने के जितने लोगों की शादी हुई है वो सभी ऐसे थे। ना, बिल्कुल ऐसा नहीं नहीं। है। आई स्टिल रिमेम्बर कि मेरे नाना नानी का रिलेशनशिप एंड माय दादा दादी, ऑल्दो आई हैव नॉट सीन माय दादा दादी, बट आई हैव हर्ड अ लॉट ऑफ स्टोरीज अबाउट देम। एंड माय हाँ। डैड टेल्स मी कि मेरी जो दादाजी थे, ही वाज अ ह्यूज, मतलब ऐसे स्टर्डी बिग मैन। एंड जो हम्म। दादी थी, शी वाज वेरी स्मॉल हाइट वाली, जैसे अमिताभ बच्चन एंड जया बद्री, है ना। अच्छा। एंड हम्म। बिफोर मैरिज ओनली माय फादर, मेरे मेरे जो दादू थे, उनको मेरी दादी इतनी पसंद आ गई कि शायद अलग विलेजेस में रहते थे या समथिंग, तो हर रोज वो इतने बड़ा वाला वो लस्सी का ग्लास होता है ना, हाँ उसको हाँ वो दूध भर के ही वुड टेक एंड ही वुड गिव इट टू हर, कि तू ये पी, आज के आज, अभी के अभी पूरा पी, क्योंकि तेरे के अंदर ताकत होनी चाहिए तुझे मुझसे शादी करनी है। ही टोल्ड हिज फादर इन लॉ कि शादी तो मैं इसी से करूंगा, आप आराम से कर दो तो ठीक है, नहीं तो मैं चक के ले जानी है। And I am like, oh my God, this is so cute and this is so romantic. And my, on the other hand, my Nana Nani had a very different relationship. My Nani was coming from a very rich family, a wealthy rich family. और नाना के पास इतना कुछ भी नहीं था, एंड उनका बहुत मिजरेबल, बहुत गंदा रिलेशनशिप था, बिकॉज माय नानी वाज अ लिटिल डार्कर एंड नानू वाज वे टू फेयर। तो हम्म। ही हैड दिस थिंग कि अरे मुझे तो लड़की भी नहीं दिखाई और ऐसे मेरी शादी कर दी इससे, हाँ, वो and all किसी of ने that. कहीं कॉम्पनसेट कर दिया ना। Yes. And I'm like, हाँ। wow, two contrasts, and I see that so beautifully in my own family. Oh, yes, there are all kind of people since generations, and हाँ। क्या ही बोल सकते हैं इसके बारे में. Or maybe this concept has arisen. पहले it was natural thing. अभी हम कॉन्शियसली वी आर ट्राइंग टू इंस्टिल इट इन आवर किड्स कि बेटा तुमको भी पूरा होना है, उसको भी पूरा होना है, देन ओनली कम टुगेदर, डोंट गो फॉर समबडी हु नीड्स यू बिकॉज तुम्हारा उसका सर्वाइवल नहीं है तुम्हारे बिना, नो दैट इज नॉट डन। सिर्फ तुम उसके काम करने के लिए नहीं जा रहे हो। तो माय डॉटर ऑलवेज आस्क मी, आपने पापा से शादी क्यों करी है, एंड आई यूज्ड टू से कि भैया, आई ऑलवेज हैड दिस इन माय थिंग इन माय माइंड कि आई वांट टू मैरी अ पर्सन जिसके मैं काम आ सकूं। तो करवा लिया काम भाई, करवा लिया। अब मैं बदल चुकी हूँ, एंड माय वाइफ की हस्बैंड, डेफिनेशन ही यही थी ना, पर वाइफ की डेफिनेशन ही ये थी कि आप कितना अच्छा काम करोगे उतनी अच्छी आप वाइफ। exactly, ये तो but हम नहीं, it अब was not बदले for हैं। my family. It was not in my family. Why? Because my mom was also working, my dad was also working. Both were working in the kitchen together only. फिर मेरे दिमाग में ये कहाँ से आया? I don't even know. मेरे को तो ऐसे आदमी से शादी करनी है. I don't care whether I do anything in my life or not. कहीं होगा, कहीं पीछे के generations में से निकल के आया होगा. And all of a sudden, what happened to Karishma now? डीएनए, She's like, कुछ करना डीएनए है. कटवा दे करिश्मा, डीएनए कटवा दे। नहीं, and then आजकल। अभी अब मेरा हस्बैंड परेशान। उसके बाद जब मैंने स्टार्टेड डूइंग समथिंग, वो परेशान, ये तो अच्छी खासी थी, इसको क्या हो गया, इसको हाँ अब ये। क्या करियर बनाना है, एंड आई एम लाइक, और अब इज लाइक, हाँ कौन सी मीटिंग में जाना है, जाना है तो जा, कोई बात, हम लाइक जाना है तो जा, क्या होता है,
मैं पैसे दे रही हूँ, मैं जा रही हूँ, लाइक ओके, things keep changing, dynamics keep changing, but the only thing that I believe that has worked for me is कि अपनी एनर्जी वर्क करो, अपना काम करो, हाँ, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। अपना काम करो, हाँ, जो क्योंकि आपकी एनर्जी से मैच करते रहेंगे वो साथ में रहते रहेंगे, नहीं तो पीछे छूटते रहेंगे। छो- छूटते रहो फिर। छूटो फिर, मैं हाँ, क्या कर सकती हूँ। आई हैड छूटो अ फिर। वेरी ब्यूटीफुल रिलेशनशिप विद वन ऑफ माई कजन एंड सीरियसली बताऊं, 2 साल से मेरी मेरे मतलब शी वुड कम एवरी वीकेंड टू स्टे एट माई होम, हाँ। एंड उसके साथ ऐसा कट ऑफ हुआ है कि अब तो मैं मतलब 6-8 महीने बाद खुद जाके वीकेंड पे जाके उसको मिलने चली जाती हूँ कि यार चलो चलते हैं उसका वो, बिकॉज शी इज नॉट मैरिड येट। तो ऐसा लगता है कि यार वो हम्म। अकेली हो गई है, डिप्रेशन तो नहीं हो गया, कुछ तो नहीं हो गया, व्हाई शी नॉट टॉकिंग वगैरह। तो मेरे आउट ऑफ दिस थिंग ओनली आई जस्ट गो कि नहीं हम्म। यार, यू शुड बी ह्यूमन एंड यू, अदरवाइज कनेक्शन नहीं है। वी वर सो हम्म। क्लोज, कुछ तो शिफ्ट हुआ है ना उसकी एनर्जी में भी मेरी एनर्जी में भी कि वी आर नॉट इवन यू नो दैट क्लोज एनी मोर, हम्म। एंड इट इज ओके, दैट इज हाउ लाइफ इज। आई तो हैव मेड सो मच पीस विद ऑल ऑफ इट। जो छूट रहा है छूट जाओ, आगे बढ़ो, कोई बात नहीं, जो होगा देखा जाएगा, भगवान की मर्जी, ऑल इज गुड, ऑल इज हाँ। गुड। और मेरे को पता है कि जिसको रहना होगा वो अपने आप काम करके उतना ऊपर चढ़ेगा, नहीं तो वो नहीं करेगा, नहीं करेगा तो नहीं रहेगा, बात ही खत्म है। उसकी वजह से आप अपनी एनर्जी ले। सो व्हेन वी वर रीडिंग यू वर नॉट विद अस इन द मैप ऑफ कॉन्शियसनेस ना। नहीं, वो तो मेरा पूरा मिस हो गया करिश्मा। तो आप जब जितना लव के पास जाओगे, इट विल हेल्प यू इवॉल्व इवन मोर, द मोर यू लव द बेटर इट इज फॉर यू। बट जो लोग नीचे की सर्विसेज पे होंगे, जो और कुछ कुछ काम कर रहे होंगे, सो एवरी एवरी इमोशन, एवरी अप दैट यू गो, दैट हैज सम शैडो साइड टू इट एज वेल। आप ज्यादा लंबे चले जाओगे, आप पैसा कमाना छोड़ दोगे, आपको प्यार, सेवा भाव, एनलाइटनमेंट, ऑल ऑफ दैट इज गोइंग टू स्टार्ट हैपनिंग। So the people who really want to keep working and do something in their life, they have to be in the frequency 200 से ऊपर, that is courage, and 500 से नीचे कि भैया लव से ज्यादा ऊपर नहीं जाओ कि एनलाइटनमेंट होके तुम साधु संत महात्मा बन जाओ। एंड मुझको बड़ा मजा इसको सोच के और समझने में और आज का इंसाइट पढ़ के इसलिए आया क्योंकि I have been saying this without knowing all of it कि I choose to operate from the space of love and understanding। तो मुझे ऐसा लगता है कि ओ आई हैव डन माई सेल्फ सम गुड वर्क, गुड फेवर बाय सेइंग दिस अगेन एंड अगेन, बिकॉज नाउ जब भी मेरे को किसी और को रिस्पॉन्ड करना होता है, रिएक्ट करना होता है, मेरे को मैं आई फर्स्ट सेंटेंस दैट कम्स टू माई हार्ट एंड सोल इज लविंग एंड अंडरस्टैंडिंग। समझो क्या बात है, दैट हेल्प्स मी टू बी नॉन रिएक्टिव मोस्ट ऑफ द टाइम्स, है ना। और हर किसी हम्म। का ये अपना अपना है कि आपको किस हम्म। लेवल पे ऑपरेट करना है, क्या करना है। दैट इज अ वेरी ब्यूटीफुल बुक, आई विल एटलीस्ट शेयर, मैंने उसके अंदर शायद डाली थी बुक 10 PM वाले में इसकी समरी। आई शेयर इट विथ यू पर्सनली, एटलीस्ट वो पढ़ो, अब यू विल लव इट, हम्म। है ना। तो और जब आप मतलब यू विल बी ओके टू मूव ऑन, एंड मूव ऑन क्या मतलब, थिंग्स विल बी बेटर सेटल्ड एट योर एंड, पापा ठीक हो जाए थोड़ा सा एंड घर आ जाए, टाइम होगा आपके पास व्हेन यू कम बैक ऑन ट्रैक, है ना। तो रिकॉर्डिंग्स भी शेयर कर दूंगी, उसको देखना, इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल। सो इज द यू आर द प्लेसिबो। मुझे तो उसको भी पढ़ पढ़ के गूज़बम्प्स आते हैं कि ओ माय गॉड व्हाट वी थिंक इट एक्चुअली मैनिफेस्ट। एंड कल परसों मेरी मम्मी कुछ बोल रही थी एंड आई वाज लाइक डोंट से दैट, आई डोंट टेक इट कीप इट टू योरसेल्फ, मुझे ना बताओ, मुझे नहीं हम्म। चाहिए। तू तो मोटी है, तू तो मोटी है, मैंने कहा नहीं है, मैं वो बहुत अच्छी, मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं नहीं मोटी। ये सब भी बोल बोल के मेरे पे चढ़ता जा रहा है, मेरे को नहीं सुनना ये सब कुछ। ठीक है, we'll work on ourselves and we'll see how the world around us, the environment around us evolves।
ठीक है ना? Right. चलो, take care of yourself. Thank you so much for joining in today. Mwah. Lots of love and Thank you. Thank you, God bless. Karishma. Thanks a lot. Thanks for being there. That I know that yes, Karishma is there. I am Seriously. there. I am. That gives me uh, uh, such a peace and such a security, mental, emotional security. This, yes, I know that yes, someone is there. Karishma is there. That means a lot, and I assure you that yes, I am there. Whenever you feel any emotional turmoil happens, you feel down, call me. I'm always available on the phone. एक बार मिस कॉल आ जाएगी, at least I will know that you are looking for a talk. So I will call back, है ना? Perfect. Take care Thank of you. yourself. Bye bye.